Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning, student of class 10th. Start with your revision session or with extra questions. First chapter for your revision session, that is circle. We discuss about the circles. कुछ चैप्टर मैं कराऊंगा एंड कुछ चैप्टर जो है ममता मैम कराएंगे आपको. इज इट क्लियर? लेट अस स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर दैट इज सर्कल. In circle you already read, you are told that radius is the first theorem is your, that is radius is perpendicular to the tangent. This is your first theorem of this chapter. And second is there is a tangent. Tangent drawn from external points are equal. And what is tangent? That is line segment which touch a single point of a circle. That point is called point of contact, and this line segment is called the tangent. And what is second? Those lines which intersect the circles. सर्कल को इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाए, that is called the second. Is it clear? दो थ्योरम की थी. Radius is perpendicular to the tangent, and second is tangent drawn from external points are equal. The length of tangent drawn from external points are equal. This is the theorems. So start with new question. Therefore first extra question मैं बोल रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चंस को. Yes. Find the length of the tangent drawn from a point whose distance from the center of a circle is 25. मुझे टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी है फ्रॉम ए पॉइंट हुज डिस्टेंस इज फ्रॉम द सेंटर. उस पॉइंट से जो पॉइंट टेंजेंट से के सर्कल के सेंटर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है. एंड गिवन दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर. दिस इज योर सर्कल एंड दिस इज द टेंजेंट. ठीक है, दिस इज द पॉइंट P which is distance from 25 centimeter from the circle, and this is the radius, and this is given 7 centimeter. We find out the length of tangent. Tangent की length आप find out करते हैं, that is MP. अभी आपको मैंने थ्योरम बताई थी, radius is perpendicular to the O1 perpendicular to the PM. Radius is perpendicular to the tangent. Now this is, so angle M is equal to 90. If angle M is equal to 90, so triangle OMP is right triangle. Right triangle हो गया. So find out the Pythagoras theorem. OP square is equal to OM square plus MP square by Pythagoras theorem. Is it clear? Now what is your OP square? That is 25 square. OM is 7 square. Find out the PM square. 25 square 625, 7 square is 49, PM square find out. तो इसका अंदर आएगा, that is in minus. Now that is 576. What is the square root of 576? That is 24. So the length of tangent is 24 centimeter. Is it clear? 24 centimeter. Is it clear? I hope you understand this question. Now next extra question is, चलिए that is your second question. In figure, if AB is equal to AC, this is your figure, and in this figure that is given A, B, C, and this is the point of contact E, F, and this is B. In figure AB equal to AC, here is given AB equal to AC, and also given, sorry, that is true, that B equal to EC, B equal to EC प्रूव करना है. और ये किस तरह से क्वेश्चन आता है, देखिए बेटे, लिख दीजिए ABC and isosceles triangle. This is the isosceles triangle in which AB equal to AC subscribed about a circle. सर्कल के बाहर बन रहा है ये, ठीक है, as shown in figure. फिगर में दिखा रखा है आपको. प्रूव दैट द बेस बाइसेक्ट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. बेस जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बाइसेक्ट हो रहा है, यानी B इक्वल टू EC प्रूव करना है. इज इट क्लियर? चलिए बेटे आइए प्रूव.
चलिए बेटे, पहले बेटे दैट इज गिवन ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन. Now how we write AB? That is AD plus DB. AD plus DB and AC AF plus FC. मैं लिख सकता हूँ इसे ऐसे. Is it clear? Now at point B, B पे आ जाएगी. B equal to BD. Is it clear? Why B is equal to BD? At C, again C equal to CF. Why? Tangent drawn from external points are equal. आपने पढ़ा है कि एक्सटर्नल पॉइंट्स जो टेंजेंट खींच जाती है वो आपस में इक्वल होती है. नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट, AD प्लस DB, AD प्लस DB. We proved that BD equal to B, तो यहाँ पुट कर दूंगा B and AF equal to AF प्लस FC, और FC की जगह मैं क्या लिख दूंगा C, लिख सकता हूँ मैं. ठीक है, मैंने प्रूव किया. नाउ पॉइंट एट पॉइंट A, अब पॉइंट A बनाएंगे. AD इक्वल टू AF होगा. सेम रीजन, AD इक्वल टू AF, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल. यहाँ AD की जगह क्या लिख देंगे आप, AF लिख दीजिए. B इक्वल टू AF प्लस C, AF to AF कैंसिल, सो B इक्वल टू C. यही प्रूव करना था. इट इज योर आंसर. इज इट क्लियर? ठीक. नाउ our next question, that is most important question. और एग्जाम्पलर में भी है ये क्वेश्चन आपके. व्हाट इज द क्वेश्चन? यस, a circle is touching the side BC of a triangle ABC. Question number 3. इसे ट्रायंगल ए बी सी सर्कल है जो इसे टच कर रहा है BC पर. इज इट क्लियर? एट P, ट्रायंगल एट P एंड टचिंग AB एंड AC प्रोड्यूस टू Q एंड R. और अगर इसे प्रोड्यूस करें तो ये ऊपर भी इसे टच कर रहा है और इसे R पर टच कर रहा है. इज इट क्लियर? देन वी प्रूव दैट. क्या प्रूव करना है? दैट इज AQ is equal to half of parameter of triangle ABC. मुझे प्रूव करना है AQ जो है हाफ है इसके पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ABC. नाउ कम ऑन द प्रूफ एट पॉइंट P. फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट P लाएंगे. PB इक्वल टू PQ. वाई? अभी मैंने आपको बताया था. अगेन एट पॉइंट C, CP इक्वल टू CR. बोथ आर सेम रीजन. व्हाट इज द रीजन? Tangent drawn from external points are equal. Is it clear? External point से जो खींची जाती है वो आपस में equal होती है. ठीक है. Also point A, AQ equal to AR. Again same reason. Tangent drawn from external points are equal. Now how to we write it? AQ को कैसे लिख सकते हैं? AB plus BQ लिख सकता हूँ मैं. AB plus BQ. और AR को कैसे लिख सकता हूँ? AC plus CR लिख सकता हूँ मैं. ठीक है. नाउ AB को एज इट इज रहने दीजिए. BQ की जगह बेटे मैं क्या लिख सकता हूँ? मैंने प्रूव करा दैट इज BP. इज इट क्लियर? एंड AC एज इट इज रहने दीजिए. CR की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? CR अभी प्रूव किया CP. इज इट क्लियर? आइए बेटे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कैसे लिखें? All sum of all side AB is equal to BC plus CA. AB as it is. BC को बेटे कैसे लिख सकता हूँ मैं? BP plus PC plus C. Is it clear? But AB plus BP, AB plus BP, that is AC plus CP plus BC plus CA. हमने बाई इक्वेशन प्रूव करी. AC plus CP, AC plus CP, AC plus CA.
आर होना चाहिए, दैट इज सी आर, ए बी प्लस बी सी बी पी एंड पी सी प्लस सी पी। बेटे दो ए सी और दो बी पी हो रहे हैं, आप इसे ऐसे कर लीजिए, ए बी प्लस बी पी एज इट इज। इसकी जगह मैंने प्रूव किया पी सी प्लस सी ए की जगह मैंने प्रूव क्या किया आपने, ए बी प्लस बी पी, यहाँ रख दीजिए। हाउ मैनी ए बी, दो, और दो ही बी पी हो गए तो दो कॉमन, तो ए बी प्लस बी पी। इधर चल रहा था आपका पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, 2 को डिवाइड में ले लीजिए, 1/2 पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, और ए बी प्लस बी पी, ए बी को एज इट इज बी पी, बी पी को आपने फिर प्रूव किया था बी क्यू, तो इसकी जगह बी क्यू लिख दूंगा, तो ए बी प्लस बी क्यू पूरा क्या करना हो गया आपका, दैट इज ए क्यू, दैट इज अवर, यही हमारा क्या था प्रूफ था। मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको, पॉइंट ए बी पर आइए, बी पी इक्वल टू बी क्यू, पॉइंट सी पर आइए, सी पी इक्वल टू सी आर, और ए पर ए बी ए क्यू इक्वल टू बी ए आर। ए क्यू को मैंने तोड़ के लिख लिया ए बी प्लस बी क्यू, ए आर को तोड़ के लिख लिया ए सी प्लस सी आर। अब इसको एज इट इज रहने दिया, ठीक है, सॉरी ए बी को ऐसी, बी क्यू की जगह बी पी लिख दी, ए सी को ऐसी, सी आर की जगह सी बी लिख दिया। अब पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बी सी को तोड़ने वाले बी पी प्लस बी सी, ए बी को ऐसे रहने दिया, बी पी को ऐसे रहने दिया, पी सी और सी ए प्रूव किया मैंने ए बी प्लस बी पी, इसकी जगह ए लिख दिया, तो डबल ए बी डबल बी पी, 2 डिवाइड में ले लिया मैंने, ट्रायंगल ऑफ ए बी प्लस बी पी, बी पी को प्रूव किया था मैंने किसके, बी क्यू, तो इसकी जगह बी क्यू लिख दिया, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू पूरा ए क्यू हो गया, तो ए क्यू इज हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, और ये आपका फार्मूला भी हो गया। इज इट क्लियर? ये आपका फार्मूला भी हो गया, आपने ध्यान रखना है इस फार्मूले को। इज इट क्लियर? सो माय डियर, इन नेक्स्ट सेशन वी डिस्कस फर्दर क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर सर्कल, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराएंगे और कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं है, एक दिन जूम मीटिंग कर लेंगे। इज इट क्लियर माय डियर? टिल देन थैंक यू वेरी मच माय डियर।